Good morning and a warm welcome to all of you to AgriTech 3.0 Smart Agriculture for Viksit Bharat, empowering farmers, enabling innovation, ensuring sustainability, brought to you by ASSOCHAM. I'm your host Anisha Nayyar Dhawan. I request all of you to please be seated, please clear the aisles and settle down. For an uninterrupted experience, I request all of you to please put your phones on silent. If you have any urgent calls that you need to take, I request you to please step outside the hall and take the call. For an auspicious start to the event, I would request our esteemed dignitaries to please come forward to light the ceremonial lamp. I request Mr. Sagar Kaushik, President, Global Corporate and Industry Affairs, UPL, to please accompany our chief guest, Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, to please light the lamp. I would request our other dignitaries to also please join in to light the lamp. I request Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Mr. Prakash Jayaram, Partner, Technology Consulting, EY. Mr. Basudev Mukherjee, Assistant General Secretary, ASSOCHAM, to please come forward to light the lamp. आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो. Thank you all for initiating this auspicious beginning to the event. The light of the lamp leads us from darkness to light. The flame symbolizes knowledge and wisdom. Knowledge removes ignorance, just as the light removes the darkness. I request our dignitaries for the inaugural session to please come up on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome on stage our chief guest, Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog. Please welcome him on stage with a round of applause. Please welcome Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Please welcome Mr. Sagar Kaushik, President, Global Corporate and Industry Affairs, UPL. Mr. Prakash Jayaram, Partner, Technology Consulting, EY. And Mr. Basudev Mukherjee, Assistant Secretary General, ASSOCHAM. We will be joined by Dr. R.J. Agarwal, Chairman Emeritus, Dhanuka Agriculture Limited, and Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman, Agri Inputs and Farming Practices Council, ASSOCHAM, and Chairman, Crystal Crop Protection. I would request Mr. Sagar Kaushik to please welcome our chief guest, Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, with a planter. We want to thank him for coming here and for sharing his expertise and his vision with the audience. I request you to please present a planter to Professor Ramesh Chand. I would request Mr. Basudev Mukherjee to please welcome Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Thank you.
India's agriculture sector stands at the cusp of transformative revolution. Technological advancements in agriculture, ranging from precision farming to digital crop monitoring and efficient irrigation systems, are transforming traditional practices. With over half of the population still dependent on agriculture, enhancing productivity, resilience, and profitability is critical to achieving the government's vision of Viksit Bharat at 2047. ASSOCHAM's AgriTech 3.0 Smart Agriculture for Viksit Bharat brings together policy leaders, agri-innovators, investors, and farmer organizations to discuss the technologies, policies, and mindset needed to improve productivity and sustainability in the farming ecosystem. I would like to introduce Mr. Sagar Kaushik, President, Global Corporate and Industry Affairs UPL Limited. He is representing ASSOCHAM Chair, Agri Inputs and Farming Practices Council. He brings over 30 years of global agribusiness leadership, including senior roles across Europe and Asia at Bayer Crop Science and Aventis Crop Science before joining UPL in 2011. I request Mr. Sagar Kaushik to please address the audience and give the opening address. Please give a round of applause for Mr. Sagar Kaushik. Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner to Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Also we have on the dais my other colleagues here. I also welcome them. Also in the audience, I know that there are farmers' bodies representative and some of the farmers' leader may also be coming soon here. So I also welcome them, and also any other officials who have been invited. So also welcome to them. And I do recognize media participation also for this event. So also welcome to them. And good morning, ladies and gentlemen, for coming together this morning to this event, which actually stages the AgriTech 3.0. Now, the ambition for today is basically to cover the empowering farmers and also enabling innovation and in the context of sustainability. So I think this is the broad area, and I would like to actually pick up the first part, the empowering farmers. We need to recognize that there is a substantial work which has happened in the country by the farmers themselves and also the agriculture value chain, which has been greatly supported in the different initiatives from Government of India in the last decades or even longer. So I think the outcome that the farmers have been able to produce because of the empowerment as well today is the food security that India is able to provide, first to our Indian population itself, and also supporting the global initiatives or global wherever there are needs for the food security, we have been also as a nation able to support. So there is one area which is of very high importance, which I want to bring in, is the picture which you see in front of you is basically representing that there is a global initiative
which started many years ago, which is the COP30, which is actually the countries of the parties, the different countries under the UN body, they come together, and I think some of you, and especially sir, very much familiar, very much part of it. So this is the United Nations countries, they come together, and this initiative is participated by almost 200 countries every year with lot of commitment on what we could do to arrest the faster change in the climate which is happening. Now, what is special in COP30? COP30 is the 30th round which is happening, and this is happening in Brazil. And I want to connect this with the area of empowerment that we need to be concerned and we need to be participating in that. And that empowerment actually is the recognition of the agriculture as a part of the solution. Not only bringing agriculture to a negative, that agriculture is one of the cause for the climate change, but it is also a very strong partner to the solution that is where the role of the farmers comes in advance. There is a lot of recognition of the farmers in terms of the food production, food security, but when it comes to the climate change, I think there is a hero which has not been recognized so far, and I'm going to touch on these areas. Is it moving? Yeah. So I think it is, we need to just understand that the farmers today are not at the front line of the climate action. There are several industries globally have been recognized for the energy transition, for the transportation part, etc. But the farming and the farmer has not come into the recognition that they are actually the very important partner which are supporting the climate change related adaptations and the mitigation. And the farmers there are really the hero which we are not able to recognize today as a part of the climate action. So you will see in this slide that the farmers aren't just the food producers, but they are actually the climate protectors. And by adopting the sustainable agricultural practices globally, some large figures you are able to see here. And that is what the millions of acres, billions of acres of soil that is being addressed every year for its health. You also find that the level of the carbon sequestration which agriculture does, just another parameter which is supported by agriculture. So I think overall the role of the farmer is linked to the climate action, and therefore this is the missing piece that we need to recognize. And also as the industry, we have to see that we create a trustful relationship with the farmer, and to establish that when it comes to the climate action, farmers can become, and they are doing it, so that is sort of a tagline that farmers can, and that is what is being driven in COP30 in Brazil. And my company, I am very proud to say, is driving this campaign that the farmer in the climate action gets a position from zero to hero. And that is where I think the strength lies there. Now, COP30 is running a campaign in Belém, basically to celebrate that the farmers are the climate heroes. And whether it comes to the sustainability,
or it is coming to that the farmers, they are, their role will get amplified, that how they become in the front line as far as the climate action is concerned. Now, in the entire value chain, it's also important that we as a consumer, we should also recognize and we should celebrate the strength of the farmers for the climate action. And as a consumer, we should recognize this, not only the strength, but the resilience and the innovation which the farmers they themselves create. The most resilient, if you call as the businessman, is actually the farmers. And I don't need to elaborate the kind of risk which biotech risk, abiotic risk, which the farmers are facing. I think that requires really the recognition from the consumer side, the consumer of the food. So if the consumer recognizes it, I think then the loop of the agriculture value chain is completed. So it is not ending with the consumer. The response of the consumer back to the producer is also equally important, and especially in the context of the climate action. Now, we do hope that after the deliberations, which will happen in the COP30 in Belém, we will see that compared to the other COPs which have happened in the different countries in the past, the discourse in the agriculture will be much more sharper, much more visible, and we do hope that these several countries in their local environment, there is a recognition of the farmers' action for the climate, and also the support, not only that they are recognized, but also they are incentivized to bring those changes which pertain to the sustainable agriculture. Now, I am proxying for Jai Shroff, perhaps you know, so therefore I can just read out the message from him that with the campaign, a farmer can. Mr. Agarwal, welcome, please. Thank you. A farmer can the partner to the climate action. So we are amplifying simple but urgent message. The future of climate resilience begins in the fields. Farmers are already leading the way, innovating, adapting, and also regenerating. Yet their contribution remains under-recognized in the global climate discourse. The campaign is our call to policymakers, institutions, and consumers to stand with farmers, empower them, and make them central to the climate action. So that is how I think this campaign is expected to create much more recognition than the earlier COPs which have taken place. Now, I want to combine this with our country, that the fabric of our country in the field of agriculture, how much resilience we have already brought in. I think some data, of course, nothing is hidden from Professor Ramesh Chand and also from Dr. Singh, but I need to just mention for the benefit of all of you that, look, these are the 30 sustainable agriculture practices which are all round we see in our country. Some of them are the changing the agriculture systems, and some are the practices. So whether we are talking about the conservation agriculture, we are talking about agroforestry, we talk about the water harvesting or integrated pest management, these are the multiple schemes or the multiple sustainable agriculture practices which in the country we are already having. But the dimension of this is very important to see. And see the first slide. 25 million hectare is under agroforestry in our country,
in the 15 agroclimatic zones. What a diversity of the system which already exists in our country. What is missing here, sir, is the climate-related data behind it. So therefore, we cannot present it that this so much of already the existing practice, how much carbon it is sequestering, how much other benefits which are relevant for the climate action, those data points are really not on the record. And that actually gives the empowerment to the participating farmers and also to the country. So similarly, I will just move through other areas. Look here, the crop rotation, which is the practice in our country. Not many countries in the world, they go for the crop rotation. So 30 million hectare is the area, and including 1 million hectare for the intercropping. And 15 million farmers are practicing it. So these are actually the climate action. These are on the record, but the data pertaining to this, that how this data can be translated into the climate action related to scheme, I think those areas need to be still recognized by the researcher, by the industry as well. So then we have this rainwater harvesting, 20 million hectare. I mean, these are the sizes of the mid-sized countries that our country is able to really practicing it, and the farmers, they are behind it. So precision farming 9.2, and of course the integrated pest management 5 million hectare. And I must say, this data is about some 5 years old. And even this data, we don't have the fresh update. But this itself is quite compelling to state that India really has a fabric of working for the sustainable agriculture, and if we are able to convert that into the quantitative outcome for the climate action, I think will benefit in terms of empowering the farmers, because they are the real heroes. So with that, I would like to stop, and I hope this conversation will continue. With this, once again, welcome to everybody, and welcome to our chief guest, Dr. Singh and Dr. Ramesh Chand. Thank you very much, sir. And with this, we begin our next course. I hand over to the MC. Thank you. Thank you, sir. I would like to introduce Dr. R.G. Agarwal, Chairman Emeritus, Dhanuka Agritech Limited, a pioneering agro-input leader with over 5 decades of experience. He transformed the company into a major player in Indian agriculture while championing farmer-vested innovation and sustainable growth. I would request Dr. R.G. Agarwal to please give an industry overview. Please give a huge round of applause and welcome Dr. R.G. Agarwal. सबसे पहले मेरा प्रणाम आप सभी को। जो सम्मान राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा आयोग नहीं दिला सका 75 साल में, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में राष्ट्रभाषा को दिलाया है। तो मैं आज्ञा चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा में ही बातचीत की जाए। जहाँ तक इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात है, तो हमें इंडस्ट्री को कल, आज और कल तीनों उसमें देखना होगा। सबसे पहले देश में क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड आए, जिसमें बीएससी आईसीआई ने गैमेक्सिन नाम से शुरू किया, और वो फैक्ट्री बाई चांस 1960 में लगी और 1980 में हमें टेक ओवर करने का मौका मिला। उसके बाद कार्बामेट्स, ओपी कंपाउंड, सिंथेटिक्स, और आज डायमैक्स और दूसरी बहुत केमिस्ट्री आ रही है। एक ज़माना था लाइसेंस राज था, तो बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री थी और क्वालिटी की इतनी समस्या नहीं थी। जब से डी लाइसेंसिंग हुआ और 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन मिलता था, 100 रुपये में,
नतीजा क्या हुआ कि 11,000 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन मिल गया और सरकार ने KYC शुरू किया, जिसमें नो योर कस्टमर, जिसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन पूछी गई। और हमारे डॉक्टर PK सिंह जी भी बैठे हैं, शायद 8,000 के करीबन कंपनियां KYC इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई और भारत सरकार ने शायद ये फैसला लिया कि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएं और राज्य सरकार को उनके लाइसेंस कैंसिल करने के बारे में लिखा जाए। और सन 2010 में ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंसिल किए गए थे और उनका नोटिफिकेशन भी हुआ था। तो ये मिड एज में आज अब नया KYC लागू होने की बात हो रही है। तो आज सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री की इमेज हमारे इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने ख़राब की। जो इंडस्ट्री का ओवरव्यू है, आज हमारी इंडस्ट्री को जहाँ जाओ तो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वो हमारे और आपकी वजह से, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी वजह से नहीं है। ये हमारी पोजीशन, हमारी इमेज को ख़राब किया है। जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, आज देश में कितना % होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 2007 में मार्केट से 50-60 सैंपल लेके टेस्ट कराए थे IPFT में और रिपोर्ट भारत सरकार को भी दी। 11 4-8 के सैंपल लिए थे, उसमें 10 फेल थे और 5 0% थे। तो मैं ये सब बातचीत इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश में क्वालिटी का क्या हाल रहा है। और पेस्टिसाइड एक ऐसा इनपुट है जो फार्मर के लिए इंश्योरेंस का काम कर रहा है। हमारी भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज हम राइफल ले आए, हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी या फोर्सेस को बहुत मजबूत बनाया, लेकिन जो हमारे बेचारे फार्मर्स हैं वो कब तक गरीब बना रहेगा? कब तक हम उनको नए हथियार देने से पीछे हटते रहेंगे? कब तक हम उनको न्यू टेक्नोलॉजी किसी एक सोच के पीछे हम अपने फार्मर्स को वंचित रखेंगे? और क्यों वंचित रखना चाहते हैं? ये हमारे बीच डॉक्टर रमेश चंद जी भी बैठे हैं, डॉक्टर PK सिंह जी भी बैठे हैं। कि आज आवश्यकता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने एक्जोटिक पेस्ट हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। आज ब्लैक थ्रिप्स इतना एपिडेमिक हो चुका है कि वो लेटेस्ट पेस्टिसाइड से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसका कारण कर्नाटक की रिपोर्ट प्रूफ है। 250 सैंपल जिसमें 12 पेस्टिसाइड की कॉकटेल और ऐसे भी पेस्टिसाइड जो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है पाए गए। अगर ऐसे सब लेथल डोज पे पेस्टिसाइड यूज होंगे तो देश का अगर लेटेस्ट पेस्टिसाइड भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, उसके रास्ते में कुछ बैरियर्स हैं जिनके बारे में बहुत हमें आवश्यकता है सोचने की कि उन बैरियर्स को क्या हमें रखना चाहिए या हम अपनी फोर्स को राइफल दे सकते हैं। तो हमारे अपने किसानों को हमें राइफल देने से पीछे हटना चाहिए। मेरे आज की बात में इंडस्ट्री व्यू में आज हमारे देश को नए पेस्टिसाइड की बहुत सख्त आवश्यकता है। हमारे किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैं अभी इंडस्ट्री में काम ना करके किसानों के बीच में काम करता हूं। कल शाम को भी मेरठ यूनिवर्सिटी में 25 साइंटिस्टों के बीच बात हो रही थी और उन्होंने भी बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया जिनका सोल्यूशन नहीं है। गन्ने के अंदर रेड रोट, पोका बोइंग और टॉप बोरर का कोई इलाज उनको नहीं मिल रहा है। जो पेस्टिसाइड है उनकी रेसिस्टेंस है और परेशान है। इसी तरह बहुत सी क्रॉप्स में चर्चा हुई। तो आज मैं 3 बातों पे बात रख के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आज हमारे किसान की इंडस्ट्री से क्या आवश्यकता है, उसी बात की बात है। भाई एक तरफ पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? किसान के लिए बात कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? भाई पेस्टिसाइड तो किसानों ने यूज़ करने हैं और हम यहाँ बैठे हैं तो हमें 2 लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए। एक किसान के लिए जिसकी वजह से हमारा पेट भरा है और हम यहाँ आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अगर सुबह नाश्ता नहीं करा होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते
और दूसरी तरफ हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश में हम पीसफुली बैठे हैं। तो हम दोनों के लिए मैं कहूँगा कि हम ताली बजा के बेशक उनके पीछे भी उनका स्वागत करें। तो हमें किसान के लिए क्या करना है, दो चीज़ें हैं। उसको नई टेक्नोलॉजी, जिसमें ख़ास तौर से पेस्टिसाइड, जिसका बहुत बड़ा रोल है, और आज क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए एग्जोटिक पेस्ट आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन फास्टेस्ट वे में ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए। मेरा निवेदन है डॉक्टर पी.के. सिंह जी से स्पेशली कि भाई जो इस रास्ते में जो भी समस्याएं हैं, हमें बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं और सरकार को किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचना होगा। हमें राष्ट्र का और किसानों का हित देखना है या नहीं देखना। अगर नहीं देखना है तो ना देखें। कल को फिर से जो फूड सिक्योरिटी हमारे किसानों और वैज्ञानिकों की मदद से, उनकी मेहनत से मिली है, क्या उसको हम फिर से रिस्क में लेना चाहते हैं तो अलग बात है। अगर रिस्क में नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, आने वाले कल के लिए हमारे देश में करीबन 350 पेस्टिसाइड है, विश्व में 1100 पेस्टिसाइड है। क्यों हम अपने किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नए पेस्टिसाइड से वंचित कर रहे हैं? ऐसी कानून बननी चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि हम भी अपने किसानों को जल्दी से जल्दी नए पेस्टिसाइड दे सकें। और क्वालिटी की जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हम बदनाम हैं, हमारी इंडस्ट्री बदनाम है, किसान परेशान हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी जब मिले थे फार्मर से 15 दिन खरीफ सेशन में, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो किसानों रखी थी, क्वालिटी की रखी थी। सरकार को इस मामले में भी देखकर कुछ नया सिस्टम ऐसा बनाने की ज़रूरत है जहाँ बायस सैम्पलिंग, तेलंगाना में 50% सैम्पलिंग 8 कंपनियों की। ये मजाक नहीं तो क्या है इंसेक्टिसाइड एक्ट का? ये मजाक हम देखते रहेंगे या इसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ आगे, ताकि हमारी देश की, हमारी इकोनॉमी की, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बनाने का, उसमें अगर हम हर हिंदुस्तानी सहयोग देंगे तो उसमें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का एक अहम रोल होने जा रहा है। हम सब लोगों का अहम रोल होने जा रहा है। हमको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी इंडस्ट्री से संबंधित है जो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। एसोचैम ने मेरे को बुलाया, मौका दिया, मैं सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for a rousing speech. We are very happy to welcome Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman, Agri Inputs and Farming Practices Council, ASSOCHAM, and Chairman, Crystal Crop Protection Limited, a visionary agrochemicals industrialist with more than 3 decades experience in R&D, manufacturing and marketing of crop protection solutions. I would request Mr. N.K. Agarwal to please address the audience and give the industry perspective. Please give a round of applause to Mr. N.K. Agarwal. सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं तो हो ही रही हैं। मैं भी स्टकअप हो गया था ट्रैफिक जाम की वजह से, कुछ वीआईपी मूवमेंट थी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं टाइम से नहीं आ पाया, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, टाइम से पहुँच गया। मंच पर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी, सदस्य नीति आयोग, आदरणीय श्री पी.के. सिंह जी, एग्रीकल्चर कमिश्नर एंड चेयरमैन CIB-RC, others dignitaries sitting on the dais, my industry colleagues, friends, scientists and the media if is here. आज का जो टॉपिक है स्मार्ट फार्मिंग फॉर विकसित भारत, मैं अभी यही सोच रहा था कि आई शुड डिस्कस इन द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। पॉइंट्स तो अगेंस्ट द मोशन भी हैं, इसके पक्ष में भी बोले जा सकते हैं और विपक्ष में भी बोले जा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम पक्ष में बोलें, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं चलेंगे, चीज़ों के सॉल्यूशंस की ओर अगर नहीं जाएंगे, तो समाधान नहीं निकलेगा।
हमें सॉल्यूशंस की ओर देखना चाहिए। स्मार्ट फार्मिंग और विकसित भारत दोनों हैं तो बड़े एक से, लेकिन फार्मर की जो स्थिति है वो उसको फूड सस्टेनेबिलिटी, फार्मर सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट फार्मिंग ये कॉम्बिनेशन अभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज का हमारा किसान जिस स्थिति में है उसकी चिंता सरकार को तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से पिछले 10 साल की जो गवर्नमेंट ने काम किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस मंच से, और आदरणीय रमेश चंद्र जी भी बैठे हुए हैं, नीति आयोग के सदस्य, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में जो नीतियां बनी हैं, जो योजनाएं बनी हैं सरकार के द्वारा, वो किसानों के हित में बनी। हालांकि कानून भी बने, वापस हुए परिस्थितिवश, लेकिन जितना बजट, जितनी योजनाएं हमारे देश के किसानों के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए सरकार द्वारा बनाई गई, वो वास्तव में भारत के एग्रीकल्चर भविष्य के लिए बहुत सुंदर योजनाएं हैं। अब योजनाएं बनी हैं, बजट दिए गए हैं, विषय आता है इम्प्लीमेंटेशन का। और इम्प्लीमेंटेशन में किसका सहयोग? तो सिस्टम का सहयोग रहेगा, वेदर दी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इनका बड़ा रोल है कि वो इम्प्लीमेंटेशन योजनाओं का हो जाए, जो बजट दिए गए हैं वो प्रॉपर रूप से यूज़ हो जाए फार्मर के हित में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं हमारा देश का सामान्यतः जो किसान है वो गरीब किसान है, अनपढ़ किसान हैं, और उसके पास में तकनीकी की तो है ही दिक्कत, उसके पास तकनीकी पहुंच नहीं पाती, लेकिन सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती। ये कैसे पहुंचे, किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है, और यहाँ इंडस्ट्री के बहुत सारे सभी रिस्पॉन्सिबल एग्री इनपुट के सभी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। क्या हमारी सबकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मुझे लगता है ये चर्चा का विषय है आज की डेलिब्रेशंस में। हमारे 2 एक्सपर्ट्स, रमेश चंद्र जी का भी पूरा इतिहास एग्रीकल्चर से संबंधित रहा है, और पीके सिंह जी का भी, वो तो मुझे लगता है कि विजनरी अबाउट एग्रीकल्चर, जो मेरा भी अनुभव आया है, जितनी चिंता मैं जब भी मिला हूँ पीके सिंह जी से, आपने हमेशा एग्रीकल्चर, फार्मर, प्रोडक्शन हमारी कैसे बढ़े, इसके ऊपर ही चर्चा की है और इसकी योजनाओं पर चर्चा की है। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स सामान्यतः यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखेंगे तो एग्री इनपुट में केवल पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री का बहुतायत है। जैसे बहुत बड़ा रोल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एग्री इनपुट में एग्रोकेमिकल्स का ही है। मेरा मानना है कि एग्री इनपुट में स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, फार्म मैकेनाइजेशन, सीड्स, एग्रोकेमिकल्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, एंड ओवर एंड अबाव जिसका बहुत बड़ा गैप हमारी एग्रीकल्चर में है, जो मेरा अनुभव है, वो है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। अगर मुझसे जानकारी लेंगे, मैं तो जो मेरी जानकारी में है वो उसके ऊपर कोई काम विशेष हुआ नहीं है। मुझे ध्यान में आज से 10 साल पहले माइक्रो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में माइक्रो न्यूट्रेंट्स के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी थी, तो लेकिन वो कितनी कारगर हुई, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन अभी उसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक स्मार्ट, अब ये स्मार्ट शब्द तो स्मार्ट मैन, स्मार्ट हमारा बिजनेस, वो तो सुना था, लेकिन स्मार्ट फार्मिंग एक नया शब्द पता नहीं कैसे ईजाद हुआ, लेकिन स्मार्ट मेरे समझ में नहीं आया। किसान स्मार्ट हो नहीं सकता, बड़ा सिंपल सीधा सरल आदमी है, उसको आप स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद दुनिया की आंखों में धूल देख रहे हैं या हम सबकी आंखों में धूल देखी जा रही है। आई एम सॉरी टू से, स्मार्ट फार्मिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस द फार्मर अपने आप को सस्टेन कर पाए। 40-41% फार्मर खेती से बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसको अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है।
ये चिंता का विषय है, सरकार चिंता कर रही है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? हमारे हिंदुस्तान की अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर डेवलप कंट्री से कंपेयर की जाए, चावल के क्षेत्र में कितने 2600 कुंटल की अगर एवरेज है, तो डेवलप कंट्रीज में 4600 कुंटल की है। आप देखिए कितना फर्क है। क्या हम सरकार, सिस्टम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटीज, इंडस्ट्री, एग्री इनपुट इंडस्ट्रीज मिलकर के कोई इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकते कि भाई हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं फार्मर की? क्योंकि फार्मर की इनकम तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बढ़ने वाली है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ज़ीरो इनपुट कॉस्ट के ऊपर हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो आई एम सॉरी, ज़ीरो इनपुट कॉस्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। पहले ज़रूर होते थे घर का, किसान का घर का बीज, घर की दवाई, घर की गोबर की खाद और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। उसमें भी तकनीकी की आवश्यकता नहीं है, तो तकनीकी नहीं लगाई गई थी। तो मेरा मानना है आज के इस मौके पे जो सारे दिन में डेलिब्रेशंस होंगी, उस पर अगर ये चर्चा हो कि ये फार्मर की हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलकर के कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी के इश्यूज़, तकनीक के इश्यूज़, तो ये तो आ रहे हैं, वर्षों से चर्चा है। हमारा सैंपल फेल हो रहे हैं, ये हो रहा है, इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये इंडस्ट्री ये सिद्ध करके दिखाए ना कि मैंने ये गांव अडॉप्ट किया, इस गांव की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गेहूं की पिछले वर्ष 18 कुंटल थी या 22 कुंटल थी, मैंने 26 कुंटल करके हमारी एक इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया गांव और करके दिखाई, 28 कुंटल करके दिखाई। क्या कर नहीं सकते हैं? आफ्टर ऑल विदेशों में हो रहा है ना। कोई एग्जाम्पल है किसी इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया हो और उस गांव की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा करके दिखाया हो सरकार को? देखो जी, दिस इज द पैकेज एंड प्रैक्टिस। फर्टिलाइजर ऐसे यूज करना चाहिए, पेस्टिसाइड ऐसे यूज करना चाहिए, इरिगेशन ऐसे करनी चाहिए। वो काम अभी नहीं हुआ है, उसको बैठ के करना चाहिए। आज के मैं तो यही अपने ओपनिंग रिमार्क्स, अपनी जो बात रख रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, फार्मर केवल एग्रीकल्चर से नहीं पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन से, हेल्थ से। अब उसके यहाँ 2 भैंसें या 2 गौएं हैं, उसकी बीमारी की सलूशन भी नहीं है। ये इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री काम कर सकती है। अगर जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़के फील्ड में जाते हैं, क्या उनको ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि भी वेटनरी की प्रॉब्लम है फार्मर की? यार तुम गए हो फार्मर को मिलने के लिए, एग्री इनपुट के लिए, फार्मर ने कहा मेरी गौ के साथ तो ये प्रॉब्लम है, आपने कोई दवाई बता दी, वो सोल्यूशन निकल गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और उससे फार्मर की एग्रीकल्चर इनकम नहीं बढ़े, वेटनरी से बढ़ेगी, पैसा तो उसकी पॉकेट में आएगा ना। मेरा दूध बढ़ गया, वो करेगा ना अपनी एग्रीकल्चर खेती पे। तो हमें हॉलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए। ये एक विषय है। विषय बोलने के बहुत हैं, समय कम है। हमारे अशोक दलवई जी एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, और मैं उनका जो विजन था सेकंड क्रॉप का, वो डिस्कस हुआ और फिर बाहर हो गया। आज सेकंड क्रॉप मीन्स आप आफ्टर हार्वेस्टिंग जो बच जाता है, अब तो उससे एथेनॉल और डीजल या पेट्रोल बनने लगा है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम के अंदर, और हम लोग अगर ये डिस्कस करेंगे, कुछ कंक्लूड करेंगे, एसोसिएशन हमारी जो एसोचैम है उसमें बैठ करके इसको कंक्लूड करके सरकार के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कुछ सलूशन हम दे पाएंगे। मेरी बात को सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. I would now request Mr. Prakash Jairam, Partner Technology Consulting EY, to please give the knowledge address. He's a seasoned technology consulting leader, helping organizations harness digital transformation and innovation to drive business value. I request him to please address the audience and talk to us about the potential technology holds for agriculture.
Thank you for this opportunity, ASSOCHAM, as well as dignitaries on the stage. So, show of hands. How many of you use UPI? Almost everybody. How many of you have used DigiYatra? Again, a lot of people. How many of you have used DigiLocker? Again, quite a few people. So the topic I'm going to briefly touch upon is digital public infrastructure for agriculture. India has been leading the way in creating digital public infrastructure for about 10 years now. Aadhaar has really revolutionized quite a few things. For example, distribution of government benefits and implementation of government schemes. UPI has radically changed payments to how even in a village, a vegetable vendor or a thelawala accepts a UPI payment with no trouble at all. There is no hurdle of digital literacy. There is no hurdle of hesitation with regard to using a smartphone. Now, India, I think for India, this is the next big wave, next big opportunity across all domains, including even something as complex as agriculture. Why do I say this? The Government of India, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, has embarked on creating 3 digital public infrastructure for agriculture. It's part of what is called the Digital Agriculture Mission. And it's something that we as ENY have been associated with conceptualizing and helping build. So when we started our work on digital agriculture about almost 8 years ago, a lot of things were changing in technology. Satellites were going up, lots of satellites. ISRO had launched about 117 satellites in one launch. And you could now get data pretty much at a farm level, but not from Indian satellites, from foreign satellites. So we started a journey in agriculture saying, it's fantastic, we can get satellite data down to the farm level, you can identify a farm, you can identify what crop is growing. Unfortunately, that has not yet happened. Variety of reasons. One is we don't have Indian satellites. Getting data from foreign satellites is costly, etc., etc. So as our journey on digitizing agriculture in India continued, we realized that there is a very, very basic problem. We don't even know who the farmer is across the country. Today, every resident of India is identified by Aadhaar. But is every farmer identified as a farmer? No, the answer is no. Why? Because every scheme has a separate farmer identifier. So we embarked on a new journey called AgriStack, where we had 3 basic goals. Answer the question, who is a farmer? What farm does the farmer either own or cultivate? And what crop has the farmer grown on the farm? Only 3 questions. Just like Aadhaar answers the question, who are you? And are you who you say you are? These are the only 3 questions that AgriStack will answer. Now, I think Mr. Agarwal mentioned that agriculture, the states have to cooperate, and this is very true. Agriculture is a state subject, it is not a central subject under the constitution. So if the central government builds something, most states are hesitant to use it. As a result of this, many schemes have really not been realized, many government schemes have not been realized to the full potential. So AgriStack, as we were building it, was something that the center was designing, but each state was implementing. Now, each state, 33 out of the 36 states and union territories have now signed an MOU with the center to implement AgriStack. This is, I think, a phenomenal journey over the last 3 years. About 7.5 crore farmers have registered with a farmer ID, which is based on Aadhaar. It's deduplicated across the country, so a farmer is now uniquely identifiable across the country based on Aadhaar. These farmer IDs link the farmer to their land. The survey number, even though the survey number might have been outdated, locates the land on the map, so you know where the farmer's farm is. And with these 2 authenticated sources of data like Aadhaar,
somebody takes a picture of the crop that has been grown on the farm. And as of the last Kharif season, about 30 crore crop survey pictures, digital crop survey photographs have been taken on farms across the country, across these 33 states and union territories. How does this help? Number one, it really accelerates delivery of government schemes to the right beneficiary, to their Aadhaar linked bank account. For example, the Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana can be delivered to any landowning farmer automatically through their bank account, because now the farmers are identified. Through this process, about 10% new farmers have registered for PM Kisan who were not there earlier. Fasal Bima Yojana can be more easily implemented because the picture of the crop identified and validated is available, and therefore a claim can be compared against the actual crop sown and then paid out through DBT again. This will reduce the premiums that are being charged by insurance companies because the fraud probabilities go down. Similarly, there are a whole host of use cases. Fertilizer subsidy, for example, by linking the farm ID and the farmer ID to the soil health, you can now exactly recommend how much fertilizer a farmer can avail of through the government subsidies. Those are still, many such government use cases are still in progress, being worked on with the, by the Ministry of Agriculture, with the Department of Financial Services, with the Fertilizer Ministry, etc. This is also being linked to animal husbandry and fisheries, so that you would have a unified view of all of the assets that a farmer has. So I think this is the foundation, like Aadhaar, for digitizing agriculture in the country. Now, what are some of the things that AgriStack, which is the specific project, can enable? See, India, we estimate, has about 80 crore plots, each of a little over 1 hectare in size. Our population is about 140 crores. So far, we've always seen this, the size of the farm and marginal farmers as being a cause for concern, because it's difficult to increase productivity, it is difficult to aggregate inputs, a lot of challenges across the value chain. But if we again take some inspiration from various other industries which have digitized and changed the game, Uber and Ola, which many of us have used at least a few times in our lives, are another example. Now, they aggregate drivers and rides, and you can now link a passenger to a driver, and the driver's incomes have gone up, the availability of transport to anybody, anywhere, in most cities at least, has gone up significantly. People are willing to pay a higher price for the increased convenience and the safety that it provides. So if you think about that, why can we not think about 140 crore people buying from 80 crore farmers directly by connecting the consumers and the farmers? This is not a journey that's going to happen overnight, but why can't we convert our whole food production, at least maybe half of it, into a tailored, customized nutrition program where the people that can afford to pay higher prices for the food are linked back to individual farmers, maybe not one, but 3 or 4 farmers who produce their needs in a specialized manner. This is a utopian journey in some sense, but it really focuses on converting the challenge of small landholdings into a potential opportunity where we actually have one set of farmers that are producing in bulk for MSP and other larger procurements, and another set of farmers that are producing much higher value crops that are directly linked to demand. So AgriStack, which is one of the 3 DPIs, I think has potential significantly to change agriculture. As of today, AgriStack is largely being used by central and state governments for running government schemes. But there is a plan and a roadmap to start opening up this data. Who is a farmer? Where is their farm? And what crop have they grown? Not only in the last season, but for many seasons in the past. Also opening that up to private sector participation. That should then enable better seed supply chains, better fertilizer supply chains, better farm mechanization, a variety of services that today private sector does a much better job of delivering to the farmer than the government does. So this is one of 3 DPIs. I'm going to make a mention of the other 2,
because we'll run out of time. The other DPI is Krishi DSS, the Krishi Decision Support System. So the country has been collecting significant amounts of geospatial data on weather, water, soil, etc. And it has been aggregated in the Mala Nobis Crop Forecasting Center over many decades. This data is typically being used only as printed maps or for local analysis. If this data were available publicly to a variety of startups, private sector users, etc., like Google offers Google Maps, or you have Google Earth for doing geospatial analysis, many kinds of analysis could be done so that you could offer very tailored recommendations. As one example, very recently, there was quite a bit of flooding in Maharashtra. Floods are easily identifiable using satellite maps. Using these satellite maps, you can figure out which farms have been affected. And disaster relief can be very proactively rolled out, because with AgriStack, you know who the farmer is and what crop they have grown. And the basis of this is a significant reduction of almost 45 to 50 days in disaster relief. Agriculture lending, you can reduce it from, for KCC, can be reduced from about 60 days duration to under 30 minutes duration. So all of these factors make a huge difference in how the farmer can access their services, giving the farmer a significant choice on whatever they wish to do. The third DPI is something called Vistar, which is being worked on by the ministry. This is a front end which enables the farmer who is digitally challenged to be able to speak using their local language, and an artificial intelligence translates that into a question which is then interpreted using packages of practices. This is still in pilot stage, there's a lot of work to be done on it. But essentially, if a farmer can call and get crop, land and farm specific advice at scale, I think that would be a big game changer as well. So in summary, I think the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is doing a lot to digitally transform agriculture. There have been significant budgets that have been, in successive budgets, there have been significant amounts of money that have been set aside for digital agriculture by the center to be spent by the states. And there is a plan to open a roadmap to open all of this up to the private sector as well. So I'm, for one, very hopeful that in the next 5 to 10 years, the smallholder farmer will get significant benefits by connecting to this set of networks or digital public infrastructures for agriculture, AgriStack, Krishi DSS, Vistar, that the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is working on. And I invite private sector to also start thinking about how they can join in this journey when all of these get accessible by the private sector as well. Thank you. Thank you. I'm sure there's a lot of opportunity in this sector, and entrepreneurs will come forward to grab them when they find it worthwhile for them. I would like to introduce our guest of honor, Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. He is spearheading policy formulations and implementation to enhance agricultural productivity, sustainability, and farmers' welfare nationwide. I request Dr. Praveen Kumar Singh to please come to the podium and to address the audience and talk to us about his vision for agriculture in our country. Thank you, Madam. Respected Dr. Ramesh Chandji, other dignitaries on the dais, friends from all the stakeholder sections, whether it is farmers or industry or IT sector even. So, friends, Sagar ji started with the first part of that. I will start from the last, that is from the sustainability part. So, if we आज जी अग्रवाल साहब सोचे होंगे कि आज हम इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं चलिए हिंदी में ही बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी की. सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, जैसे भी इसको आप समझें.
और आत्मनिर्भरता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 तक हमको आत्मनिर्भर बनना है, एंड दैट टू वहाँ पे जाके अगर हम सस्टेनेबिलिटी का सोचें तो सस्टेनेबिलिटी इन दी जो हमारा CAGR है, हर साल आप किस तरह से ग्रो करेंगे, दैट शुड आल्सो बी सस्टेनेबल, ताकि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके साथ हमारी ग्रोथ भी मैच कर सके। दैट काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड इन दैट टर्म्स। अभी EY से प्रकाश जी पूछ रहे थे ना कि हम आप में से कितने लोगों ने, एक हम लोग का पोर्टल है upag.gov.in, कोई देखा है उसको? नहीं देखा है, देखिए आप कुछ लोग देखें। सो दैट इज़ UPAG, दैट इज़ यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। जो भी सागर साहब कह रहे थे ना कि डेटा इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, आपके पास सोर्सेज नहीं हैं कोई भी चीज़, तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है, चाहे वो एस्टिमेट्स का हो, प्रोडक्शन का हो और मार्केट इंटेलिजेंस का हो, जितना भी डेटा हो सकता है हम लोग इसको UPAG पोर्टल पे डाल रहे हैं, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन मेकिंग आवर प्लान्स इन द फ्यूचर। जो हमारा आपका जो आप अभी बता रहे थे कि क्रॉप रजिस्ट्री बनी हुई है, सीड रजिस्ट्री बन रही है, साथ ही पोर्टल हो रहा है, आपका इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, ये सब एग्रीस्टैक का ही पार्ट होगा। कभी न कभी सब एक साथ यूनिफाइड वे में काम करेंगे, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं आना चाहिए स्टोर में, ताकि एनीबडी कैन यूज़ इट। जैसे हम लोग एक कभी इनिशिएटिव लास्ट ईयर किया गया कि जितना फसल बीमा का डेटा था, जो गांव जहां पे भी फसल बीमा है किसी का, तो वहाँ का जो क्रॉप ईल्ड का डेटा है उसको हम लोग उसके ऊपर डिजिटाइज कर रखे हैं। तो नाउ वी नो कि इस तहसील में, इस गांव में इस पर्टिकुलर क्रॉप की ये पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी आई है। तो उसके बेसिस पे अब जब हम लोग को धन धान्य योजना के लिए 100 ज़िले ऐसे छांटने थे जहाँ पे कि क्रेडिट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है, किसी वजह से वो 100 ज़िले कृषि के क्षेत्र में पिछड़े रह गए हैं, उनको छांटना था, तो दैट बिकेम ए वेरी गुड हेल्प फॉर अस। उसी तरीके से अगर आपको देखना है कि आगे चल के हमको आत्मनिर्भरता के लिए कहाँ पे, किस क्रॉप के लिए हमें कितना काम करना है, आपका इनपुट का जो सप्लाई चेन बनेगा वो डेफिनेटली उसी तरीके से डाइवर्ट करेगा। छोटा सा जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ इस साल है ना, कहीं पे सोयाबीन को हटा के मक्का आया, कहीं को तूर को हटा के मक्का आ गया, उतने से ही डिस्टर्बेंस से हम लोग का फर्टिलाइज़र सप्लाई सिस्टम दिक्कत में आ गया। क्योंकि मक्के में अगर 12.5 किलो आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, N की रिक्वायरमेंट है सोयाबीन, ये तूर की, तो 125 किलो रिक्वायरमेंट है आपके मक्के की। दस होल चेन डिस्टर्ब्स द इनपुट सप्लाई सिस्टम। आपके एग्रोकेमिकल्स की रिक्वायरमेंट पूरी चेंज हो जाएगी। सोयाबीन के लिए अलग रिक्वायरमेंट थी, अब अगर वहाँ पे 5 लाख हेक्टेयर नई क्रॉप आ जा रही है, तो उसके हिसाब से आपको सप्लाई कैसे बिल्डअप करना है आने वाले समय में, ये इंटेलिजेंस आपको डेफिनेटली। तो जो अभी डेटा की बात हो रही है कि कैसे हम क्रॉप, आपका जो कार्बन क्रेडिट्स का डेटा है या और भी जो भी इस तरह के डेटा है, उसको किस तरीके से उसमें लाएंगे। तो दूसरा है सस्टेनेबिलिटी का, सबसे जो सेकेंड क्रॉप की बात भी किसी ने की थी, दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ। मतलब 100% यूटिलाइजेशन ऑफ वट एवर बायोमास हैज़ बीन प्रोड्यूस। क्योंकि बहुत मुश्किल से फोटोसिंथेसिस होती है, पौधा कुछ बना के रखता है अपने जीने के लिए, वो जड़ भी बनाता है, पत्ते भी बनाता है, ग्रेन भी बनाता है, जो भी है, बट हाउ दैट वेस्ट इज़ बीइंग मोनेटाइज्ड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, एंड दैट इज़ ऑल आवर मेनी स्कीम्स, CBG and all those are coming in that. And then the cost of cultivation, that is the third point. आप अच्छे महंगे केमिकल ले आते हैं, हो सकता है किसी डिज़ीज़ के, पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए आप बहुत रिसर्च करके कोई उसका केमिकल सॉल्यूशन देते हैं, बहुत अच्छा है, दैट कैन बी कंट्रोल बाय दैट। लेकिन हमारा जो दूसरे फील्ड है, बायो प्लांट ब्रीडिंग का फील्ड है, हम उसके लिए टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप अगर कर लेते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, क्योंकि उसमें आपका अब उस केमिकल की शायद ज़रूरत कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी ले आएँ। तो एक कंसोलिडेटेड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने की ज़रूरत पड़ेगी
कि हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है। आज डीजल का बहुत सा प्रयोग जो है, अभी माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से एक दिन बात हो रही थी, तो वो भी कर रहे थे कि हम लोग को निश्चित ही ट्रैक्टर्स जो है डीजल से हटा के सीबीजी पे, इलेक्ट्रिक पे, उस पर शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट गाँव की बढ़ने ज़रूरत है एनर्जी की बहुत, क्योंकि मैन पावर से जो मिलती थी वो कम होती जा रही है। नाउ वी आर डिपेंडिंग मोर एंड मोर ऑन एनर्जी, बट हमारे किस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन, कैसी प्रैक्टिसेस हम वहाँ पे लाना चाहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की नीड्स हैं, उसके हिसाब से कैसी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और नेचुरल फार्मिंग आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रहा है, तमाम तरह के और सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सबको कैसे एक तरीके से हम मैप करके आगे के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट सोचेंगे। वो भी अभी कल ही बात हो रही थी भुवनेश्वर में, जो हमारा धन धान्य मिशन के जो 4 जिले उड़ीसा के छाटे गए हैं, अब वहाँ पे अंडुलेटिंग लैंड है, उनमें से बहुत से में पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की एनर्जी रिक्वायरमेंट टोटल अलग है जो कि हमारी हरियाणा पंजाब की होगी। कहाँ पे हमें भारी इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ छोटे हल्के चाहिए, कहाँ सोलर एनर्जी कितनी ज़रूरत होगी उनको। उस सारे कुसुम योजना हो, मिनी कुसुम, महाकुसुम, जो बड़ी योजनाएं हैं हमारी, सोलर से कैसे हम इरिगेशन सप्लाई और सबका मैनेज करना है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में है, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का भी हम लोग का इंडिया में थोड़ा इंडस्ट्री इसमें पीछे है, सीड इंडस्ट्री। सीड ट्रीटमेंट करना, सीड प्राइमिंग जिसको कहते हैं, आप अगर एक अच्छी स्टार्ट फसल को मिल जाती है सीड के माध्यम से, अच्छी वैरायटी है, सीड ट्रीटमेंट करके अच्छी वैरायटी अच्छे खेत में अगर हम डालते हैं, फर्टाइल खेत है, आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेट ही अच्छी उपज मिलती है। सीड का जो कहा जाता है, अगर ट्रीटेड सीड है तो 30 से 40% आपको निश्चित यील्ड एडवांटेज हो जाता है। और शायद इसी वजह से जब भी आप कहीं किसानों के यहाँ जाते हैं तो वो पहला चीज़ पूछते हैं साहब कोई नई वैरायटी आई हो, क्योंकि नई वैरायटी आएगी तो नया सीड भी आएगा। सीड इज़ ए कैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले उसी से आप किसानों से जुड़ते हैं। उसके बाद फिर है मार्केट इंटेलिजेंस। जो भी बात आप कह रहे थे कि अगर 80 करोड़ हमारे जो लैंड पार्सल्स हैं, इफ़ दे कैन बी कनेक्टेड विद 140 करोड़ कंज्यूमर्स है, that may be a very good thinking for the future। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना शुरू में, जस्ट अ लाइटर साइड, नथिंग व्हाट यू सेड अबाउट दैट। जब हम लोग 80s में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड नया आया था, तो ये बताते थे टीचर, मतलब आउट ऑफ इंथ्यूसियाज्म कि मछली का जो जीन है उसको ले आएंगे यहाँ पे, इसमें इस पौधे में डाल देंगे और प्रोटीन उधर से मिल जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। सो मेनी होप्स वी आर क्रिएटेड, बट इन द एंड ओनली बीटी कॉटन, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। सो उसी तरीके से डिजिटल में भी आप किसान को सपोर्ट कर सकते हैं, बट द वर्क विच ही हैज़ टू डू इन द फील्ड दैट हैज़ टू कंटिन्यू, वो कम होता जा रहा है। सारी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान जो है नाउ दे आर, वो हम लोग तब कहते थे ना, वो एक बड़े से बांस में लोटा बांध दो छोटा सा, उससे पानी पिलाओ किसी को, तो उस तरीके से पानी पिलाने वाला काम जब तक होगा, जब तक किसान के यहाँ पहुँचेंगे नहीं, इंडस्ट्री भी पहुँचे, हम लोग भी पहुँचेंगे। सबको ये कहा जा रहा है कि नाउ यू शुड हैव डायरेक्ट कनेक्ट। आपका जो एक्सटेंशन विस्तार का कंसेप्ट है वो भी यही है। विस्तार में भी यही बात हो रही है कि आप जो किसान वहाँ पे चैंपियन फार्मर्स हैं उनको ही कनेक्ट करो। आपके पास एक्सटेंशन वर्कर्स की कमी है, वन शुड बी देयर। आप एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, सीड इंडस्ट्री हो, जब तक वो खेत पे नहीं पहुँचेगा दे कैन नॉट प्रमोट देयर प्रोडक्ट। कितना भी आप डिजिटल प्रचार करते रहिए, जब तक वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दे के उसको वहाँ पे साबित नहीं कर लेगा अपनी एफिशिएंसी, अपना जो भी इफेक्ट है, तब तक उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं। तो डिजिटल इज़ ए वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा, फॉर ट्रांसफरिंग नॉलेज, बट टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस ऑन द फील्ड वन हैज़ टू वर्क इन द फील्ड। इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अग्रवाल साहब देख रहे हैं हमारी ओर, ये देख चुके हैं आप। पलवल में एक गाँव आप लोगों ने लिया हुआ है, गांव क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट पलवल को आपने अडॉप्ट किया हुआ है।
आप जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे किसान तब तक नहीं कुछ चीज़ सुनता है जब तक कि वो देख नहीं लेता है। सीइंग इज बिलीविंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और फिर एक और नया फील्ड जो इमर्ज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी, वाटरशेड मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट आया है, पानी का साधन भी बढ़ रहे हैं, जल शक्ति की बहुत सी स्कीम, अमृत तालाब और ऐसे जो योजनाएं आई हैं, तो उसमें भी वाटर बॉडीज़ के लिए भी आपका केमिकल इंडस्ट्री के पास भी सॉल्यूशंस होने चाहिए। हम लोग का एक मखाना बोर्ड का भी गठन हुआ है, मखाना करीब 60,000 हेक्टेयर में है अभी इस समय, तो उसके लिए भी कल को डेफिनेटली एग्रो सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें भी MRL के इशू आएंगे, तो कभी ना कभी उस ऐसी नए जो एरिया क्रिएट हो रहे हैं ना वाटर बॉडीज़ के लिए, उनके लिए ऐसी चीज़ों के लिए भी होना चाहिए। और शुरू से डेटा कलेक्ट होना चाहिए, जो आप कह रहे थे कि कार्बन मार्केट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि वी कैन मैप द डेटा कि हाँ इससे हमने ये टेक्नोलॉजी लगाने से हम इतना किसान की बचत भी किए हैं और इतना कार्बन क्रेडिट भी जनरेट हुआ है, उसका भी फ़ायदा किसान को कभी ना कभी मिल सकता है। साथियों, है बहुत सी और बातें हैं, लेकिन रमेश चंद जी साहब बैठे हुए हैं और हम लोग ऑलरेडी अपने टाइम के आगे निकल चुके हैं, तो हम लोग की बात तो होती रहती है, कहीं ना कहीं फोरम पे आप लोग से चर्चा का मौका होता है। एसोचैम ने हमको यहाँ पे बुलाया, आज एक बार फिर चर्चा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. I would request our esteemed dignitaries on the stage to please release the knowledge report. There is a lot that is happening which our speakers have spoken about, and there is a lot of promise. I request all of you to on the stage to please release this report so that you and everybody here can have a taste of what is happening in the agricultural space, what is the potential, and how entrepreneurs can grab that. Our chief guest, Professor Ramesh Chand, is a renowned agricultural economist with a PhD in agricultural economics from the Indian Agricultural Research Institute. He serves as a member of the Niti Aayog, steering India's agricultural policy, food system reform, and farmer income agenda. I would request Professor Ramesh Chand, member Niti Aayog, to please address the audience. Please give a round of applause. मंच पर आसीन सभी महानुभाव और सभागार में उपस्थित इंडस्ट्री की ओर से आए हुए डेलीगेट्स, इनपुट इंडस्ट्री से, एग्रीटेक इंडस्ट्री से, और इस गोष्ठी में भाग ले रहे एक्सपर्ट्स और मीडिया के साथियों, मेरी हमेशा ये एक हैबिट रही है या कन्विक्शन रही है कि मैं जिस जगह जाता हूँ, जो मुझे शीर्षक दिया होता है, मैं उसी पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। हर एक चीज़ के बहुत पहलू होते हैं। यदि हम सभी पहलुओं पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत डिफ्यूज़ हो जाता है इश्यूज़। तो यदि हम फोकस्ड वे में करें तो एक पॉसिबिलिटी, संभावना बनती है कि कोई हम अच्छे सुझाव और एक गहराई में जाकर उन सुझाव को हम जो है दे पाते हैं। अभी जो है विषय का काफ़ी विस्तार हो गया है। वो इशू सब महत्वपूर्ण है। क्वालिटी का इशू बहुत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट का इशू बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मर, स्मॉल फार्मर का इशू, स्केल का इशू बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सब अपने आप में एक पूरे दिन में डिस्कशन के विषय है और वो डिस्कशन होती भी रहती है।
तो मैं ये कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों की रुचि और ध्यान जो इस आज की गोष्ठी का थीम है उसकी ओर लाने के लिए, और ये जो नॉलेज पेपर रिलीज़ किया है इसमें जो चीज़ें हैं उसकी ओर लाने के जो है लिए आपको अनुरोध करूँगा। तो सर्वप्रथम आई रियली कंग्रेचुलेट एसोकैम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस पेपर। आई फील दैट this is really a forward looking paper on what are the future technology, what are the promising technologies, and how they can be applied in agriculture. If we focus on that, then I hope that some good suggestion will also come, and also recommendation or actionable points उसमें से जो है वो निकलेंगे। तो मैं लैंडस्केप ऑफ टेक्नोलॉजी जिस पे ये पेपर लिखा गया है और जो एग्रीटेक 3.0 की आपने अपने इसकी घोषणा की कि इस पे हम गोष्ठी कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। यदि हम टेक्नोलॉजी की लैंडस्केप देखें ओवरऑल, एग्रीकल्चर की ही नहीं, मेडिकल हो कुछ भी हो, तो उसमें एक रैपिड चेंज इंडिया में और ग्लोबली वो रैपिड चेंज आ रही है। और जो सेक्टर, जो समाज, जो देश टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के साथ पेश नहीं रखता वो पीछे रह जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो ये इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया वो इसी चीज़ की ओर हमें अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए है कि जो टेक्नोलॉजी अब एग्रीकल्चर सेक्टर को अवेलेबल हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एग्रीकल्चर में, जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर में कैसे लाएं। उसके लिए कोई रेगुलेशन बाधा बन रहा है, उसके लिए फार्मर को कैपिटल की सेस जो है वो बाधा बन रही है, उसके लिए हमें सभी सफिशेंट सेंसिटाइजेशन फार्मर का नहीं हुआ, वो एक बाधा बन रहा है। तो यदि इसकी ओर हम चलें और किस तरह से टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी जो आ रही थी उनसे किस तरह से वो अलग है, ताकि आज की टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्प्शन के लिए हमें अलग तरह के जो मेजर हैं वो लेने की आवश्यकता है। तो उस डायरेक्शन में मेरे को कल ही ये पेपर मिला और मैंने इसको सोने से पहले एक बार देखा। मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये जो है पेपर लगा, और मैंने उसको पढ़कर देखा कि इस पेपर में जो लिखा है कि क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन हुआ। आप आज से कुछ वर्ष पहले जाइए तो आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी में कोई पीरियोडिक एपिसोड होते थे। ऐसा नहीं है कि आपको क्विकली फटाफट टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी ऑब्सोलीट हो रही है, डिसरप्शन आ रही है, ये आज के समय में ये हो रहा है। लेकिन पहले जो है वो इस तरह का नहीं था। टेक्नोलॉजी एक पीरियोडिक और ब्रेक के साथ आती थी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी थी, चाहे वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो केमिकल टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो एक एपिसोड थे कि हाँ ये आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वैराइटीज़ आई, उसके साथ ही फर्टिलाइज़र आए, फिर पेस्टिसाइड आए, फिर पंप सेट आए, ट्रैक्टर आए, थ्रेशर आए, तो एक एपिसोड की तरह वो आते थे। लेकिन आज आपको बड़ी हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ आ जाती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है अचानक ही एक अनएक्सपेक्टेड जो क्वार्टर है, तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है। तो एक तो ये है कि अब टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी, इनोवेशन जो आ रहे हैं उसका एक कंटिन्यूस फ्लो है। तो पहले की तरह नहीं है कि एक बार आ गया, अब 10 साल तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। हम उसी के हिसाब से, पुराने के हिसाब से अपनी जो है बिजनेस या अपनी प्रोडक्शन को चलाते रहें। तो एक ये कि कंटिन्यूस कांस्टेंट अडेप्टेशन टू स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें आ रहा है, तो उससे ये पहला मुझे डिफरेंस लगा। दूसरा डिफरेंस मुझे ये लगा कि पहले की टेक्नोलॉजी एक क्लासेस थी कि ये
बायोलॉजिकल साइंस से आई हुई टेक्नोलॉजी है, ये केमिकल साइंस से आई है, या ये मैकेनिकल फिजिक्स इंजीनियरिंग साइंसेस से आ रही है। अब उनमें एक ऐड ऑन हुआ है, बहुत बड़ा ऐड ऑन है, जिसकी जयराम जी ने भी बात की कि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो पुरानी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भिन्न है। सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, स्पेस से टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, सैटेलाइट, चीज़ों को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल इशू। तो ये एक बदलाव और आया है पहले की जो टेक्नोलॉजी थी और जो अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं। और विदिन उन टेक्नोलॉजी के भी इतनी ब्रेक थ्रू हो रही हैं कि पहले प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के आप क्रॉस करते थे तब वैरायटी निकालते थे। आइए कृष्णवीर जी, वेलकम। तो अब उसमें भी एक नए नए टूल्स, कभी वो जीएम तो कभी जीई, हर एक फील्ड में कि एक टेक्नोलॉजी के एरिया में भी जो इन टर्म्स ऑफ आपको टूल्स अवेलेबल हैं उसमें भी एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और इनके फार रीचिंग प्रभाव हैं। यदि हम डॉक्टर पीके सिंह जी का फील्ड ले लें कि प्लांट्स में वैरायटी डेवलप करने के लिए पहले 10-10, 12-12 साल लग जाते थे। आप इतने ट्रायल करते थे, एक क्रॉस करके कोई एक चीज़ ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोमिक्स है, आप माइक्रोस्कोप और वहीं पे उन सब चीज़ों को देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि जो इसका पेस है इन चीज़ों को करने का, वो हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है और ये नई दिशाएं हैं। और जैसा मैंने कहा कि यदि हम उससे पेस नहीं रखेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे और उससे पेस रखने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, कैपेबिलिटी भी चाहिए होगी। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उन दोनों की जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें वो भी हमें उसमें चाहिए होगी। और ये कोई बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं, केमिकल देख लीजिए, उसमें भी कोई नया मॉलिक्यूल है, क्या है, ये सब तरह की नई नई चीज़ें जो हैं आ रही हैं। एक और जो चेंज आया कि पहले टेक्नोलॉजी R&D के सोर्स से ही आती थी, चाहे वो R&D पब्लिक सेक्टर करे, चाहे वो R&D प्राइवेट करे। लेकिन अब स्टार्टअप एक नया इंस्टीट्यूशन इमर्ज हुआ है जो बिना R&D के वो इस तरह से चीज़ों को कंबाइन करके आपको एक अल्टरनेटिव दे देता है कि हम एग्जिस्टिंग को ही एक नए तरीके से यूज़ करने का नया तरीका हमने ढूंढ लिया। उसके भी बहुत अच्छे गेन्स जो हैं उस पे जो है आ रहे हैं। और फिफ्थ डिफरेंस के ICT, डेटा साइंस ने ये पॉसिबल कर दिया है कि पहले हम टेक्नोलॉजी ये देते थे, ये टेक्नोलॉजी इंडो गंजेटिक प्लेन की उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए सूटेबल है, लेकिन अब उसमें स्पेसिफिसिटी, लोकेशन स्पेसिफिसिटी, पर्सन फार्मर स्पेसिफिसिटी का स्कोप हो गया है। जो आप डेटा स्टैकिंग की बात करते हो, जो हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं कि क्या हम कस्टमाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं फार्मर को कि आपके लैंड के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज के हिसाब से, आपकी एजुकेशन और स्किल के हिसाब से ये कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन आपके यहाँ के लिए है, जो कि पहले एक जोन के लिए रिकमेंडेशन थी। आप उसको डाउन टू द लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो है ला सकते हैं उसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। ये सब चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहला, हर एक सोसाइटी को ग्रोथ की आवश्यकता होती है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, हम कैसे जो हमारे लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम को ग्रो करें, जो फार्मर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उनकी इनकम को हम कैसे ग्रो करें। नंबर 2 पे हम उसमें एफिशिएंसी कैसे लाएं ताकि कम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर सकें। और तीसरा, उसमें जो यूज़र है उसको कंफर्ट कैसे दे सकें, ड्रेजरी को कैसे कम कर सकें, वो एक उसमें आता है।
और एक नया डिमेंशन जो पिछले कई सालों से हो रहा है कि हर टेक्नोलॉजी की एक सोल्यूशन लाती है और उसके साथ ही एक चैलेंज भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको इकोनॉमिस्ट एक्सटर्नैलिटी कहते हैं कि ये उसका पार्ट नहीं था लेकिन ये तो एक्सटर्नैलिटी है कि आप केमिकल यूज़ किया जिससे आपकी क्रॉप प्रोटेक्ट हुई, क्रॉप की यील्ड बढ़ी, लेकिन उसने वातावरण को भी प्रदूषित किया, उसने सॉइल्स पे भी एक इफेक्ट डाला। तो ये जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं इनको विश्व अब सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करके, एनवायरनमेंट को कंसिडर करके, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें जिक्र आया, उसके थ्रू इसको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सटर्नलिटी के इश्यूज़, क्योंकि वो पूरी मानवता के लिए सर्वाइवर का इशू होते हैं, पूरे प्लेनेट के लिए इशू होते हैं, इंडिविजुअल के लिए वो इतना चाहे बड़े इशू जो हैं नहीं इतने ज़्यादा होते। फिर एक ये है कि कई लोग बात करते हैं, वो एक हमारे साथी अग्रवाल जी ने भी शायद बात किया कि अभी भी हमारा किसान जो है अनपढ़ है, हम क्या स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। इंडिया विरोधाभास से भरा हुआ देश है, यहाँ पर अजीब किस्म की विविधता है, यहाँ पर 18वीं सेंचुरी और 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती है। अभी भी दिल्ली में बैलगाड़ी पे ट्रांसपोर्ट होता है, नारायणा में जाइए आप देखोगे कैसे वो बैलगाड़ियों से उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ ही स्मार्ट ट्रक भी आपको दिल्ली की सड़कों पे मिलते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो ये जो है कि भाई ये साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें चलती हैं, पूरा सिस्टम कभी भी किसी एक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं होता। विशेष तौर पर इंडिया में एक इकोनॉमिस्ट ने बेस्ट को समझाने के लिए ये कहा था कि वट एवर यू से अबाउट इंडिया एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट आल्सो होल्ड ट्रू इन इंडिया। हाँ, तो ये एक इसकी एक खूबी है कि यहाँ आपको वो एक्सट्रीम भी मिल जाएंगी और बीच के भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने में मिल जाएंगी। तो ये एक सेकंड डिमेंशन है टेक्नोलॉजी का कि जब हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है सभी लोग उसको अडॉप्ट करें। वो बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं हमारी वैरायटी बेस्ट है, ये तो 40% यील्ड ज़्यादा देती है, लेकिन कोई फार्मर कहता है नहीं मेरे को तो अपनी गेहूं की वैरायटी उसका टेस्ट कहीं नहीं मिलता, मैं तो उसी को करूंगा, मैं आपकी टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है वो बाधा नहीं बन रहा उसके विस्तार में। तो ये साइमल्टेनियसली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री लग जाए इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्री भी रहती है। तो ये कोएग्जिस्टेंस जो है मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट ट्रेडिशनल कोएग्जिस्ट इन इंडिया। तो ये हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी लाएं, अभी तक तो वहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। तो अब ओवरऑल यदि हम देखें इंडिया में तो एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल बहुत बिग वे में मॉडर्नाइज हो रहा है। जहाँ जिसको कोई वैल्यू एडिशन का अवसर मिलता है वो उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए, उसे हार्नेस करने के लिए जो है प्रयत्न जो है उसके लिए किए जा रहे हैं। और तीसरा एक डिमेंशन जो ऐड हो रहा है वो है इंटेग्रेशन का। यूनाइटेड नेशन पिछले 8-10 साल से सभी देशों को ये कह रहा है कि अब आप फूड प्रोडक्शन से फूड सिस्टम की ओर जाएं। केवल प्रोडक्शन को ना देखें, मार्केटिंग को भी देखें। वो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि जो संभावनाएं वैल्यू एडिशन की प्रोडक्शन में हैं उससे 5 से 6 गुना संभावनाएं पोस्ट हार्वेस्ट में वैल्यू एडिशन की हैं। ये आप भी देख लीजिए कि आपने एज ए फार्मर सेब बेचा तो मान लीजिए 60 रुपये किलो बेचा और उसमें खर्चे निकाल दो तो वैल्यू एडिशन 30 रुपये का हुआ। इसके बाद में खर्चों की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो फिर आप देखोगे कि वही 60 रुपये का एप्पल
150 रुपये किलो में, 120 रुपये किलो में बिकेगा, और उसमें ना तो सीड गया है ना केमिकल गया है, बहुत सी चीज़ें नहीं गई, थोड़ी सी सर्विसेज और स्टोरेज इस तरह की चीज़ें गई हैं। तो इसको देखते हुए ये फूड सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि हम प्रोडक्शन को साथ मार्केट लिंकेज यदि करते हैं तो फार्मर के लिए भी संभावनाएं बन जाती हैं, उनके अपने इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। इसी इंटीग्रेशन को एक्सटेंड किया कि इंटीग्रेशन विद ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम विद इन्वायरमेंट, इंटीग्रेशन विद क्लाइमेट चेंज। तो ये फिर चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर का संबंध है क्लाइमेट चेंज के साथ, ये अलग से है। अब मैं इसको बोलने लगा तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन का टाइम उसमें चले जाएगा कि एग्रीकल्चर का और क्लाइमेट चेंज का संबंध दूसरे सेक्टर के जो क्लाइमेट चेंज के साथ संबंध हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। पहला तो ये है कि बाकी सेक्टर, आप फैक्ट्री में कार पैदा कर रहे हैं, क्लाइमेट कितना चेंज हो जाए कार की प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ओके। लेकिन कार की प्रोडक्शन का प्रोसेस क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप राइस ग्रो करते हो तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, जब आप पानी स्टैंडिंग रखते हो तो एमिशन होता है, मीथेन का एमिशन होता है, फर्टिलाइजर यूज़ करते हो तब भी सल्फर का एमिशन, कार्बन का एमिशन होता है। तो एग्रीकल्चर का क्लाइमेट के साथ टू वे रिलेशनशिप, it affects climate change and also get affected by that। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज से इतना अफेक्ट नहीं होती, हाँ, बहुत कम होती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये एक जो टू वे रिलेशनशिप, प्लस एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी है कि आप कार्बन सिक्वेस्टर कर सकते हो। यही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां आप कार्बन को सिक्वेस्टर कर सकते हो, सक कर सकते हो, एनवायरनमेंट मिलियोरेशन कर सकते हो। तो ये एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एग्रीकल्चर का और क्लाइमेट चेंज का, लेकिन ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट, पूरी दुनिया का ये कंसर्न है। आपने पढ़ा होगा कि कैसे अभी डेनमार्क ने कैसे कैसे मेजर्स लिए, हम कैसे काउज का नंबर कम करेंगे, 15% लैंड अंडर एग्रीकल्चर कम करेंगे, लेकिन वो सोल्यूशन इन कंसल्टेशन विद फार्मर्स कि उससे जो उस लैंड से कोई रिटर्न्स होगी वो फार्मर को कैसे दी जाएगी, ताकि वो अपोज ना करें इस चीज़ को कि आप कैसे इस लैंड को ये कम वगैरह कर रहे हो। तो ये सागर जी ने क्लाइमेट चेंज रेज किया था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको बीच में इसको लेकर आया। लास्ट में मैं एक चीज़ के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि किसी भी सेक्टर के लिए हम टेक्नोलॉजी या परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारी परसेप्शन उस सेक्टर की सिचुएशन के बारे में फैक्ट्स में प्लेस्ड होनी चाहिए। हम कई धारणाएं 50 साल पहले की जो है उसी को लेकर सोचते हैं एग्रीकल्चर ऐसा है, कई धारणाएं 20 साल पहले की थी उसको लेकर जो है सोचते हैं कि वो उस तरह का है। तो लेकिन पिछले 10-11 साल में एग्रीकल्चर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। इसका फैक्ट्स के साथ किसी को देखना हो तो आप रमेश चंद प्रेसिडेंशियल एड्रेस एग्रीकल्चर नीति को करोगे तो आपको मिल जाएगा। को मैंने अभी एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस सारी सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस में दिया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन मीटिंग एस्पिरेशन ऑफ राइजिंग इंडिया। तो वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अपने पेपर की एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, कि बहुत सी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में अब हो रही हैं हम अभी भी सोचते हैं वो नहीं हो सकती, वो 7 साल पहले 10 साल पहले की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप एक सिंपल एक्सरसाइज करिए, ग्रोथ रेट देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पिछले 20 साल में किधर को गया है और एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट पिछले 20 साल में किधर को गया है, और उस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ज़रा स्टडी करिए। आपके ऐसे कंक्लूजन निकलेंगे कि जो हमारी धारणाएं मैन्युफैक्चरिंग ही इंजन ऑफ ग्रोथ है, मैन्युफैक्चर में ही संभावनाएं हैं, वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाएंगी। और मैंने अपने उस पेपर में उन्हीं को डिमोलिश करने की कोशिश की है कि पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ ऊपर और ऊपर ही गई है, एक्सेलरेट की है। वो 2095 से 5 तक 2.7 थी,
2005 से 15 तक वो 3.2 के आसपास पहुंची। उसके बाद के जो लेटेस्ट 11 से साल हैं उसमें वो ग्रोथ रेट 4.5% पहुंच गई है। ये अभूतपूर्व है। कभी इंडिया की हिस्ट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा ग्रोथ नहीं आया। हम विदेशों की एग्जांपल देते हैं, हीन भावना से शिकार हैं। किसी भी देश में पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर में ऐसा ग्रोथ नहीं आया जो इंडिया में है। और ये FAO का आंकड़ा है, वो भी मैंने अपने पेपर में सब टॉप के 20 कंट्री लेकर के, छोटे मोटे नहीं, जिनका ग्लोबल GDP में 1% से ऊपर शेयर है, मैंने उनके ग्रोथ रेट देखे। आज से 10 साल पहले चाइना नंबर 1 था, हम नंबर 2 थे, और वर्ल्ड की ग्रोथ जो है एक लेवल पे थी। उसके बाद में लेटेस्ट 10 साल वर्ल्ड का ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का कम हुआ, चाइना नंबर 2 पे चला गया, इंडिया नंबर 1 पे जो है आया है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है। हमारी कुछ स्टेट्स हैं, आंध्रा, मध्य प्रदेश, जहां एग्रीकल्चर का ग्रोथ 7% है। इंडस्ट्री में आप इतना ग्रोथ नहीं ला सकते जो उन स्टेट्स ने एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट लाया है। इन्हीं संभावनाएं, मैं सब स्टेट्स में जाता हूं, असम में इसी की संभावना है, उड़ीसा में इसी की संभावनाएं हैं। तो भले ही हमारा पंजाब, हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में अब ग्रोथ रेट ज़्यादा ना हो रहा हो, लेकिन हमारे पास अभी भी वास्ट एरिया ऐसा अवेलेबल है जहां अभी भी असम में गाय की मिल्क यील्ड 2 किलो है। हम उसको बहुत मिनिमम एफर्ट से 6-7 किलो तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं एग्रीकल्चर को ये पॉसिबिलिटीज़ देती हैं। मैंने उस पेपर में भी कहा है, और भी मेरे राइटिंग्स हैं, कि विकसित भारत का जो गोल है उसके लिए एग्रीकल्चर बहुत वाइटल ही नहीं है। इंडिया का विकसित भारत बनना इम्पॉसिबल है यदि एग्रीकल्चर उसको वो सपोर्ट नहीं देता। ये प्रूव किया है मैंने वहाँ पर, और अलग अलग कम्बिनेशन बना के देखे हैं कि यदि एग्रीकल्चर का ग्रोथ 5 से नीचे चला जाए तो बाकी सेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उस ग्रोथ को करने की। और दूसरा जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो तो एग्रीकल्चर का हम सब जानते हैं कि 46% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ एम्प्लॉयड है। लास्ट में ये जो हमारा अब हिस्टोरिकली हाईएस्ट ग्रोथ रेट 4.5% आया, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसको 5% पे ईजिली ले सकते हैं। वो इनर्शिया बना है और पोटेंशियल भी जो है उसमें जो क्रिएटेड है। और अब कोई फूड सिक्योरिटी की भी ओवरऑल लेवल पे हमारी समस्या नहीं है। कोई कह सकता है हम दालें इंपोर्ट करते हैं, भाई दालें जितनी इंपोर्ट करते हैं, तेल भी हम खाद्य इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे 2 गुना हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेट हम उस जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से 2 गुना है। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी सेल्फ सफिशेंसी आ जाए, लेकिन ओवरऑल लेवल पे हमारा पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन पिछले 20-25 साल में 50% इंक्रीज़ हुआ है। हम 2000 के लगभग प्रति व्यक्ति 1 किलो 300 ग्राम फूड पर डे पैदा करते थे, आज हम 2 किलो फूड प्रति व्यक्ति पैदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धिज हुई हैं, और इनसे अब कई मैसेज आते हैं कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें और उन सब को देखते हुए एग्रीकल्चर को किस डायरेक्शन में लेकर जाएं। यदि देश सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देता है, क्लाइमेट चेंज को प्राथमिकता देता है, तो हमारा ग्रोथ रेट जो अब है 4.5% पिछले 10 साल का, वो आधा भी हो जाए तब भी हम नेट एक्सपोर्टर रहेंगे। आधा भी हो जाता है तो ओके, यस, ये कंट्री की चॉइस है कि सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, एमिशन हमने कम करना है, या कोई बीच का रास्ता देखकर कि हम ग्रोथ भी थोड़ा हाई मेंटेन करेंगे क्योंकि अभी हम हाई इनकम नहीं हुए, और सस्टेनेबिलिटी और उसको भी लेकर चलेंगे। और उस सारे के लिए कि ग्रोथ को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इंटेग्रिटी ऑफ प्लेनेट, वो कैसे करें, तो उसके लिए ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ जो इन्होंने ये नॉलेज पेपर आज जारी किया है, तो इसमें कुछ सुजेशंस हैं कि आप ग्रोथ भी इंटैक्ट रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी नहीं कंप्रोमाइज़ करोगे। इस तरह की और भी कई जो है संभावनाएं जो बनती हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एग्रीकल्चर अब उस मोड पे खड़ा हुआ है कि जहाँ आप ग्रोथ रेट को 4 से 5 भी कर सकते हो, पूरी वो संभावना है। लेकिन यदि वो 4 से 5% करना है, उसकी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी।
देश के अंदर केवल 2.5% ग्रोथ ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होकर 0.78% हो गया है। पर कैपिटा इनकम 5% बढ़ रही है। इनकम की वजह से जो फूड की ग्रोथ होगी, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, वो सब आंकड़े लगाए हैं कि इलास्टिसिटी इनकम की क्या होती है वगैरह वगैरह। दोनों को हम ऐड कर लें तो डोमेस्टिक डिमांड फूड की कोई 2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। तो फिर यदि हम ग्रोथ 5% कर रहे हैं, उसको कहाँ यूज़ करेंगे? या तो फूड को नॉन फूड के लिए यूज़ करो, एथानॉल बनाओ, जो भी है इंडस्ट्री में उसको यूज़ करो, या फिर उसको एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करना है तो फिर एफिशिएंसी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस बिना टेक्नोलॉजी के नहीं आती। वहाँ आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि हम एक एफिशिएंसी की ओर कैसे अपनी इसको लेकर जाएं। तो बहुत सी और बातें हैं मन में, पर मैं टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार साझा करने का अवसर दिया। थैंक यू। Thank you, sir. I would now request Mr. Basudev Mukherjee, Assistant Secretary General, ASSOCHAM, to give the concluding remarks. Good morning, everyone, respected dignitaries, esteemed speakers, industry leaders, and distinguished participants. Today's session has been a remarkable testament to the power of collaboration, insight, and shared purpose. We've heard from some of the finest leaders and experts who have inspired us with their vision for the future of agriculture in India. This evolution is primarily propelled by the integration of climate resilient agricultural practices and advanced technological interventions. As we come to the close of this enlightening inaugural session of the AgriTech 3.0 Smart Agriculture for Viksit Bharat, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, our deepest gratitude goes to our chief guest, Mr. Ramesh Chand, member Niti Aayog, Government of India. Sir, your insightful address underscored the government's unwavering commitment to the journey towards Viksit Bharat and provides ample opportunities for the agri-industry. Your unwavering dedication to the welfare of farmers and your guidance in shaping agricultural policies have been deeply motivating. Your words today have reaffirmed our commitment to making farmers the cornerstone of our nation's progress, and we sincerely thank you for your invaluable presence and insights. Next, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Your expertise and valuable contributions to today's discussions have provided us with great clarity on the way forward for implementing sustainable agricultural practices. A special thanks to Mr. N.K. Agarwal, Co-Chairman of the ASSOCHAM Agri Inputs and Farming Practices Council and Chairman Crystal Crop Protections Limited. Mr. Agarwal, your efforts and dedication to promoting sustainable farming practices have been invaluable, and we look forward to your continued contributions as we move ahead. I would also like to express my deep appreciation to Mr. Sagar Kaushik, President, Global Corporate and Industry Affairs, UPL Limited. Mr. Kaushik, thank you for your steadfast support and for driving discussions on the importance of smart agriculture. A special thanks to our knowledge partner, Mr. Prakash Jairam, Partner Technology Consulting, EY. Your expertise and guidance have been instrumental in shaping the content of this conference, and we deeply value the partnership that has been made to this event. As a special word of appreciation to Dr. R.J. Agarwal, Chairman Emeritus, Dhanuka Agritech Limited, for sharing some critical insights on the industry. We deeply appreciate your presence and thoughtful input today. Lastly, I would like to express my sincere gratitude to all of you, our distinguished guests and industry leaders and participants. Your active engagement and participation are what makes this conference a platform for real change. Without your insights, discussions, and commitment, none of this would be possible. As we move forward to the rest of the sessions today, I am confident that the ideas and solutions that have been shared
will resonate deeply and guide us towards implementing sustainable, innovative, and impactful solutions for our farmers and our agriculture sector. Today, together we will continue to pave the way for a resilient and prosperous future for Indian agriculture. Thank you all once again, and I look forward to a productive day ahead. Thank you to all our dignitaries for taking the time here and coming and sharing their vision for agriculture in our country. I request all of you to please gather for a group photograph in front of the tables. We are running behind time, so we will curtail the tea break for just 10 minutes. I request all of you to please be back in your seats at 12:10. You're most welcome to bring your cups of tea or coffee on the table, but please be back in your seats by 12:10.